problems in dressing. How many kids have problem in dressing actually? Boys or girls? Girl. Boy? Boy? Boy. Alright. You have a t-shirt. Alright? This is a t-shirt. आपकी हैंडआउट्स में गेटिंग ड्रेस के बाद एक होगा हाउ टू गेट पेज नंबर 7 पेज नंबर 7 पेज नंबर 7 the middle slide. Got it? Yes? Can you come as a volunteer please? Alright? So, the problem with dressing is predominantly related to अगर वो हाथ से पकड़ ही नहीं पा रहा है वो एक मेजर प्रॉब्लम होगा रहता है तो आपको सेम एक्टिविटीज फिर से करनी है डग ऑफ फॉर दिस क्लिप्स फिंगर पेंटिंग वॉक ऑन हैंड्स वॉक लाइक अ डॉग वॉक लाइक अ दिस इज क्रॉलिंग ज़्यादा क्रॉलिंग कराना है अगर ज़्यादा उसकी पकड़ अच्छी नहीं है आपको लग रहा है बच्चे पकड़ नहीं रहे ढंग से तो ज़्यादा क्रॉलिंग करानी है क्रॉलिंग हाइपर है डू मोर क्रॉलिंग ओके डू समथिंग एल्स कॉल्ड एज बेयर वॉक Alright, bear walking. Can you demonstrate? Just go down. That's it. Touch your hands on it and start walking. Stop. This is bear walking. Alright, do more of this. Crawling, you already know. And mostly some hyper autistic students, I see red color like orange color, red, skate to wear that dresses. You will not give them that. Like this, totally avoid. And also when they get obsessed with a certain color, they think nice and green and avoid it. You have to make them because red, orange and all they do make them. Or you could put on a jacket over it. Put on a jacket over it. Majority of the kids will be okay if they're wearing a red and you put a jacket over it, that's fine. But they want to wear that only. But that is more of a behavioral issue than a problem with how to dress. Dressing, t-shirt, alright? You feel a child cannot wear a t-shirt by themselves. In that case, you should not use a t-shirt like this. Okay? It is a wrong t-shirt. Don't use a t-shirt like this. You should always have a t-shirt which has a printed front and nothing behind. It's easier for them to understand front and back. Okay? Try and avoid buying these type of clothes. Okay? Buy clothes with a front design, back no design. So if you have a teddy bear here, you tell them the teddy bear is. अगर यहाँ पे teddy bear है, तो आपको बोलना है कि teddy bear is kissing the table. So the teddy bear goes and kisses the table. Alright? And then he has to hold from here with this one. Yeah. So hold it. No. Here the thumb is never up. Okay? The thumb is it okay if I touch it? So you hold it like this. So you have to hold it. Thumb is down. Thumb is down. Alright? You are never behind the child ever. For whatever child. Okay? And then you tell him to go up. And then you sort of guide him to leave this and pull it down. 99% of the kids are going to cry here if they have something on their eyes. Okay? So what they are going to do is the fastest step. This is the fastest step. They're just going to pull it down. This is the fastest step because they don't like it. Nobody likes face cover, right? And then you teach them to hold one hand here, one hand goes. Use the same words. Up, out. Up, out. It's the clearest instruction you can ever give to anyone. Up, out. Okay? Hold the other hand. Up, out. Got it? Don't help. Saw me? Very little help. I didn't
any kid, the most dependent kid also, will not need more help if you teach them like this. Some kids, although, some kids, they see their dads and they want to wear it in a different way. So if they are okay with it, अगर थोड़े बच्चे होते हैं जिनको अलग से पहनना होता है, कि वो लोग ऐसे पहले हाथ डालते हैं, फिर ऐसा हाथ डालते हैं, फिर ऊपर करते हैं, ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है, उन लोग को बेंड और पुल थोड़ा झमेला ज़्यादा होता है. ये बहुत ईजी होता है और ये स्टैंडर्ड प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपके बच्चे को ऐसे नहीं पसंद है तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो, बट आपकी हेल्प कम होनी चाहिए. डाल नहीं देने हाथ लगा के, ठीक है. आपके सबके वर्क आपको जो भी दिया हुआ है उसमें स्टेप्स दिए हैं, ड्रेसिंग के स्टेप्स. पेज नंबर 5, पुल ओवर गारमेंट्स. Page number 5, last slide, pullover garments. Yes? दिखा? दिखा? दिखा कि नहीं? जल्दी जल्दी. Puts head through the hole, puts arm through the hole, puts down over trunk. समझा? ये सब steps है. तो अगर आप मैंने जो बोला आप भूल भी गए, आपको ये याद रहेगा, इसमें लिखा है, ठीक है. अगर आपको बच्चों को सॉक्स पहनाने, सॉक्स और आपको लग रहा है कि वो लोग खींच नहीं रहे, ज़्यादा खींच नहीं रहे सॉक्स. हेयर बैंड होता है इलास्टिक हेयर बैंड. Ask them to pull that over their feet. Just ask them to pull that over their feet. Okay. Do more sack races. Wherein they have to sit down, pull the sack over them and jump. Do more sack races. Yes. अगर आपको लग रहा है कि बच्चों जो है ऐसे नहीं कर पा रहा है हाथ, तो ऐसे आ ही नहीं रहा है हाथ करना, तो ज़्यादा माला पहनाना. जो बीट्स करते हैं ना, आपके स्कूल में कराते हैं, बीट्स कराते हैं ना, बीट्स है, बीट्स एक रोप में बीट्स डालते हैं. यस, वो बीट्स प्ले लाइक है. आपको बोलना है कि ये गार्डन लगा के हम बाहर जा रहे हैं, गार्डन लगा निकाल के हम घर जाएंगे वापस. सब कुछ खेल में करना है, एकदम स्ट्रिक्ट नहीं रहना है ज़्यादा. सब कुछ खेल में जितना आप कर सकते हो उतना कोशिश कीजिए, ठीक है. उससे वो आ जाएगा रेंज, उसको समझ में आ जाएगी कि कैसे करना है. और इंस्ट्रक्शन एक ही वर्ड बोलना है, पूरा सेंटेंस का सेंटेंस नहीं बोलना. पुल इट डाउन, खींचो नीचे खींचो, ऐसे करो, आ रहा है शर्ट को अप आउट. 2 ही वर्ड. एक तो पहले उनको समझने में दिक्कत है, उसमें आप पूरा सेंटेंस का सेंटेंस पूरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, ठीक है. एक ही बार बोलना है और इमीडिएटली नहीं बोलते रहना है. हाँ करो 30 सेकेंड्स ब्रेक मारना है, उसके बाद तब भी नहीं किया फिर से करो बोलना है, ठीक है. फॉर एनी एक्टिविटी पीछे नहीं पड़ जाना. इफ यू नैग देन नेवर गोना लिसन टू यू. ज़्यादा पीछे पड़ोगे ना तो वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्या है अपना अनड्रेसिंग इज द इजीएस्ट. अनड्रेसिंग इज द इजीएस्ट. ऊपर एक हाथ निकालो, दूसरा हाथ निकालो, आउट. ओके. और अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है बेंडिंग में या सीक्वेंस में, यू जस्ट हैव टू गो ऑन गूगल, पुट ऑन विजुअल स्केड्यूल अनड्रेसिंग, यू विल अगेन गेट अ सेट ऑफ थिंग्स. ये वर्ड आप याद रख लो, विजुअल स्केड्यूल, ठीक है. इसके आगे आपको जो भी नहीं आता है वो लिख देना, समझा. जो भी नहीं आता है इसके आगे आप लिख दो. कोम्बिंग, ब्रशिंग, वेविंग, ब्रशिंग, टॉयलेटिंग और गूगल याद रखो, ठीक है. तो आपको बेसिकली मिलेगी एक लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हिच दे कैन सी. अगर वो लोग देख पाए तो वो लोग डेफिनेटली करते हैं. आप बोलते रहोगे डिफिकल्ट है उनको समझना. जितना वो देख के समझेंगे ज़्यादा समझेंगे.
क्या है नेक्स्ट? एक ड्रेसिंग में एक क्वेश्चन है और लोग ये कर रहे हैं कि जब पैंट सिखाते हैं बाकी डांस ड्रेसिंग में इंटीग्रेशन के वो पैंट के साथ अंडर पैंट भी सिखाते हैं साथ में ही हो जाएगा। So you want them to do that thing or you don't want them to do that? What is best and what should be क्या करना है? दोनों साथ में निकालने का don't teach them that, okay? और पहली बात तो ये है कि पैंट और अंडर पैंट्स में डिफरेंस दे शुड अंडरस्टैंड. सो यू गो फॉर मोर टेक्सचर पे, ज़्यादा आप टच सिखाओ आप उसको बच्चों को, ठीक है? कि आँख बंद करके ये पैंट है शर्ट है, वो लोग इतना लेवल पे नहीं जाएंगे, उनको नहीं समझ में आने वाला. तो आपने क्या करना है, कभी भी अनड्रेसिंग आईने के सामने करना है. आप उसको ऐसे हाथ से नहीं समझ में आने वाला बिना देखे कि ये पैंट है या अंडर पैंट है. उसको आपने दिखाना, यू शुड सी विजुअल, ऑलवेज कॉम्पनसेट विद विजन. मिरर के सामने सिखाना है, ड्रेसिंग भी अनड्रेसिंग भी. अगर मिरर है सामने तो गारंटी वो सही करेगा, ठीक है? एक तो वो है. और अगर आपको पैंट पहनना सिखाना है ना, तो स्टैंडिंग इज डिफिकल्ट. टीचिंग देम टू वेयर पैंट्स. बैठ के पहनना सिखाना है, ठीक है? पैंट पहले, फिर नीचे बैठ के पहनना सिखाओगे, उसके बाद स्टूल पे बैठ के पहनना सिखाओगे, और फिर जब आपको खड़े होकर सिखाना है तो आपको पहले ये गेम्स खेलने पड़ेंगे. किकिंग द बॉल, ठीक है? स्टैंडिंग ऑन वन लेग, काउंट ऑफ 10, ठीक है? ये वाला गेम. और हॉपिंग, ओके? और क्लैप, ओके? और rings, you get rings. Ask them to put rings, as many rings as they can in their leg. ठीक है? वो गेम से ये स्टैंडिंग टॉलरेंस बढ़ जाएगा. जितना स्टैंडिंग टॉलरेंस एक पैर पे बढ़ेगा उतना इजीली वो पैंट पहनता है, ठीक है? बकल लगाना अगर नहीं आ रहा है, उसका मतलब ये है कि पहले तो आपको बकल दूसरे पे लगाना सिखाना है. अभी भी खुद पे डिफिकल्ट है, अलग से सिखाना पड़ेगा. बकल आएगा, बटनिंग जब बताएंगे तब आएगा. हाँ, अगर आपको नहीं सिखाना है बटनिंग, बड़ा हो गया बच्चा तो लग रहा है वेस्ट हो रहा है टाइम, क्या बटनिंग सिखाना है, तो आप वेल्क्रो लगा सकते हो. इसके साथ 3 इडियट्स देखी, 3 इडियट्स पिक्चर किसने देखी? सबने देखी? नहीं देखी पिक्चर? नहीं देखी पिक्चर? 3 इडियट्स नहीं देखी? देखी? उसमें आपने देखा कि वो जो था सहस्त्रबुद्धे, उसने वेल्क्रो लगाया हुआ था, देखा? उसने ओटी से चुराया. वो that is the easiest way to button. So you have a buttoning side of the clamp, right? ये buttons है ना? इसके पीछे वेल्क्रो लगाना है, ठीक है? और यहाँ पर एक वेल्क्रो लगा देना है. वो बटन नहीं लगाने पड़ते, बस ये चिपका देना पड़ता है. बस वो खोल देते हैं कैसे खोलेंगे? आपको लॉक करना पड़ेगा ना ऊपर, नहीं खुलेगा. और अगर वो पूरा बटन है गारंटीड नहीं खुलेगा, क्योंकि नीचे भी वो रहेगा ना. और आप मोटा वेल्क्रो लगाओगे ऊपर से लेके नीचे तक. सिर्फ बटन वाले जगह वेल्क्रो नहीं लगाना. हेलो, छोटे छोटे वेल्क्रो नहीं लगाने, पूरा वेल्क्रो लगा देना है, तो नहीं खुलेगा वो, ठीक है? लेकिन वो बहुत ही लास्ट में अगर आ ही नहीं रहा है बटन तो, ठीक है? और अगर इसको बटन करना कैसे तो आएगा, ड्रेसिंग ही आएगा, पैंट आएगा सब कुछ, ठीक है? अभी बटन, चलो बटन यू कैन मेक क्या so now nobody has buttons like this now, right? This is not correct. This is correct. You have to make like this. Make it like this. Okay. So what is the thing here is, can you see this white strip here? Can you see this cloth is brown? You are still using visual. Okay. दिखा यहाँ पे बड़ा होल है, दिखा? यहाँ पे बटन भी बड़ी है, और फिर आप उसको सिखा रहे हो. तो जब आप बोलोगे वाइट कपड़ा पकड़ो तो चांसेस ऑफ फोल्डिंग का मूव, उसको दिख रहा है. फिर ये इसमें डालना और निकालना.
डाल सकते क्योंकि उनके हाथ में स्ट्रेंथ। तो आपको रबर बैंड से खेलना है। रबर बैंड है, रबर बैंड। You have a rubber band? Yes. ठीक है, और पहले ऐसे प्रैक्टिस करना है नीचे रख के, ठीक है, और बोलना है कि ऐसे पकड़ो और रेडी टेक अप बोलना है कि विंडो में जा रहा है, विंडो में जा रहा है, विंडो में जा रहा है, ठीक है, और फिर ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन ये करने के लिए ना उनके हाथ में उतना वो रहनी चाहिए ताकत और उतना फाइन उनको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको लगा है ना पाइपिंग, ठीक है। और ये करना है, ये गेम ज़्यादा खेलना है, ये गेम। तो इसमें क्या होता है, ये उंगलियों को उनकी स्ट्रेंथ मिल जाती है खींचने के लिए, ठीक है। ये गेम ज़्यादा खेलना है। तो आप क्या कर सकते हो बताया, आपने अभी वो प्ले का बताया था ना, मैंने अगरबत्ती लगाई थी ना, ये छोटी छोटी लगानी है अगरबत्ती, और फिर एक अगरबत्ती और दूसरी अगरबत्ती में ये लगाना है। these two, ठीक है, ऐसे दिखे दो। तो अगरबत्ती खड़ी रहेगी, लगाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, लगाते रहना, ठीक है। दो पेंसिल से भी लगा सकते हो, कोई भी दो चीज़ जो पास में है उसमें ये खींचने के लिए बोलना है ऐसा, ठीक है। वो अगर आ गया उसको तो ये भी आ जाएगा, फिर उसको ये खींचना आ जाएगा, फिर आप बोलोगे विंडो में डालो, वो विंडो में डालेगा, फिर वो छोड़ देगा, ठीक है। फिर से आप बोलोगे विंडो में डालो, डालेगा। तो राइट से करते हैं, लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं। तो वो लेफ्ट यूज नहीं करते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वन हैंडेड टेक्निक टू डू ब्रशिंग, टू डू बटनिंग। तो आपको एक हाथ से बटनिंग करना, आपको उसको सिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो आपको ये 2-3 फिंगर्स को उसको ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा और मिरर के सामने करना पड़ेगा और ऐसे सिखाना पड़ेगा, इससे पकड़ो और उससे खींचो। ये बहुत डिफिकल्ट है। आपको ना मार्केट में एक बटन there is an adaptive device. It is helpful to put buttons. तो वो कैसा एक adaptive device होता है, आप देख सकते हो, adaptive device। बटनिंग का adaptation बहुत easy होता है, लेकिन कोशिश करें कि वो दोनों हाथ यूज करें, एटलीस्ट पकड़ने के लिए। तो ऐसे तो पकड़े तो भी चलेगा। For putting those टाई का बकल और वो खींच लेगा, तो एक ही हाथ से काम होता है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ओनली यूज इट फॉर किड्स हु आर पुटिंग इन ओनली वन साइड। और अगर उसका ड्रेसिंग भी अलग रहेगा फिर, तो उसका ड्रेसिंग जब आप करोगे ना, तो कभी भी पहले अच्छे हाथ में डालने का, फिर बुरे हाथ में डालने का ड्रेसिंग। जब आप उसको ड्रेसिंग भी सिखाओगे, तो अगर लेफ्ट हैंड नहीं यूज करता है तो पहले लेफ्ट हैंड में डालना है, राइट हैंड तो फिर पहले जो भी गुड हैंड गोस फर्स्ट, जो भी पहला अच्छा हाथ है उसमें पहले डाल देना है, उसके बाद बुरे हाथ में डालना है, फिर खींचना है, समझे। तो उसका ड्रेसिंग ऐसे रहेगा, उसका ड्रेसिंग जो है ना ऐसे रहेगा। अगर वो लेफ्ट हैंड नहीं यूज करते हैं तो वो ऐसे करेंगे एक हाथ से, और पहले वो राइट हैंड डाल लेंगे, फिर वो लेफ्ट हैंड। जिपर एंड ऑल इज प्रीटी इजी, इसमें ज़्यादा हेडेक की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि वो लोग नहीं पकड़ पा रहे छोटा जिपर, तो एक रबर बैंड बांध दो उसको। बोले तो राइट हैंड से पूरा काम करते हैं, लेफ्ट से हाथ नहीं, अगर जिपर छोटा जिपर नहीं खुल रहा है तो उसको रबर बैंड लगा सकते हो। ये छोटा है ना बहुत,
इतना नहीं पकड़ने आ रहा है उसको सपोज, तो आपको क्या करना है, रबर बैंड का अगर वो जिप में सर्कल है ना, तो सर्कल के अंदर रबर बैंड डाल के नॉट मारना है, फिर वो रबर बैंड को खींचेगा ऊपर, ठीक है ना। सपोज नहीं हो रहा है ना आपसे, तो आप सिर्फ ऐसे बांध भी सकते हो, कोई उसमें सीरियस नहीं है। लेकिन आप कोशिश करो कि आप बड़े जिप वाले खरीदो, कि आप ही खरीदो ना, और वो कोई कंपल्सन तो है नहीं आपको कि छोटे जिप का खरीदना है, और आजकल सारे जिप जनरली बड़े ही होते हैं। लेकिन अगर नहीं मिला तो उसके अंदर डाल कर खींच लें, और ये हाथ से जनरली जाता नहीं, आपको सुई से डालना पड़ेगा, या फिर सुई धागा भी आप यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर एक सिल के कपड़ा भी लगा सकते हो उसको, एनीथिंग, सुई से ही अंदर जाता है रबर बैंड, और फिर वो एक नॉट बांधते हैं ना, जैसे बस में वैसे